हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट थर्ड ऑफ सेम क्वेश्चन पेपर राजस्थान यूनिवर्सिटी का दैट वाज कंडक्टेड इन द ईयर 2013। तो आपका क्वेश्चन नंबर 43 ये कहता है द इम्पॉर्टेंट फीचर इन द रिप्रोडक्शन ऑफ ए फंगस इज द आंसर हियर इज spore. We know fungus reproduce primarily through these spores, which are basically what? Which are seeds of any plant, and these spore can be asexual or sexual. Okay, so fungus they reproduce through these spores. Next question: when a virus remains with the chromosome of the west of the host bacterium for a long period of time, the viral of DNA is called. The answer here is provirus. Provirus. A provirus is a viral DNA that is integrated into the host genome. Say it's a host, and here comes your viral DNA. Viral DNA integrated with the host genome is called provirus. Okay. Next question. All of the following human disease are due to members of the genus Clostridium, except the answer here is tuberculosis, because it is caused by mycobacterium like tuberculosis, and botulism, tetanus, gangrene, all these are caused by Clostridium. It is caused by Clostridium botulinum, this Clostridium tetani, and this one through Clostridium perfringens. Okay, so the right answer here is tuberculosis, as it is caused by Mycobacterium tuberculosis. Next question: the antibody that can cross the placental barrier is. The answer here is IgG. So it is the only antibody. It is the only antibody that can cross the placental barrier from mother to fetus, and thus provide passive or inherited immunity. Okay. Next question: Petromyzone has the following pairs of gill pouches, that are 7 pairs. 7 pairs of gill pouches are present in the petromyzones. Next question: sigmoid notch is present in. The answer here is radio and ulna, and it is also known as trochlear notch. और ये कहाँ? ये ulna जो bone होती है, we know ना, there is humerus and there are 2 bones of the forelimb that are radius and ulna. तो ये जो है हमारा sigmoid notch, ये कहाँ पे हमारी ये पाई जाती है? हमारी अल्ना बोन पे, ये हमारी पाई जाती है अल्ना पे। यहाँ पे एक डिप्रेशन सी कैविटी होती है जहाँ आपका ह्यूमरस बोन अटैच रहेगी, और ये जो तीनों बोन्स हैं, रेडियस, अल्ना एंड ह्यूमरस, दे आर कंबाइंडली फॉर्म 4 limbs or 4 arms. Okay. Next question: correct order of layers from outside to inside in the alimentary canal is. The answer here is serosa, then musculaire, then comes your mucosa, and the innermost is submucosa. Okay. Next question: Addison disease is related to the answer here is adrenal cortex. ये कब होती है? जब हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स इनफ अमाउंट ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन ना कर पाए, ओके, या कोर्टिसोल हार्मोन की फॉर्मेशन ना कर पाए। और ये दो जो ग्लैंड्स हैं हमारी, एड्रिनल ग्लैंड एंड एड्रिनल मेडुला, दे आर फाउंड और लोकेटेड एट द किडनीज. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ट मसल कैसी होती है? वॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री है? सबसे पहले यही देखो, वॉलेंट्री है मीन हमारे कंट्रोल में है, इनवॉलेंट्री मतलब हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। तो या तो बी ऑप्शन होगा आपका, या तो सी होगा, क्योंकि इनवॉलेंट्री है। फिर आता है ये अनस्ट्रिएटेड है या ब्रांच्ड है। तो कार्डियक मसल्स जो हैं हमारी, वो स्ट्रेट जो मसल्स हैं हमारी, वो कैसी होती हैं? इनवॉलेंट्री होती हैं और अनस्ट्रिएटेड होती हैं. ओके. Next question: Wolffian body is the name for. The answer here is mesonephros. Wolffian body also known as mesonephron, and they are intermediate kidneys. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रम इन रेप्टाइल वर्टिब्रे आर. ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है, ध्यान से इन सेंट्रम्स को पढ़ने की, इन सब टाइप्स को ध्यान से पढ़ना. तो रेप्टाइल जो है उनकी वर्टिब्रे में देयर आर एम्फिसिलस वर्टिब्रे.
इसका मतलब क्या है कि उनकी जो दोनों, ये हमारा वर्टिब्रे है सपोज करो, तो उनकी जो दोनों साइड्स हैं दे आर कनकेव, दे आर कनकेव एट बोथ एंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन पाइथन इज, द आंसर हियर इज पाइथन मोलुरस, पाइथन मोलुरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैट्स आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप, द आंसर हियर इज चिरोप्टेरा, चिरोप्टेरा। बैट्स जो हैं आपकी वो किस ऑर्डर को बिलोंग करती हैं, चिरोप्टेरा। और जो चिरोप्टेरा है आपका वो किस, ये एक ऑर्डर है, ये भी ध्यान रखने को है, ये एक ऑर्डर है और ये जो ऑर्डर है आपकी क्लास मेमेलिया, क्लास मेमेलिया को बिलोंग करता है, इसलिए जो बैट्स हैं एक्चुअल में दे आर मैमल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटोरल फॉर्म ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन, द आंसर हियर इज सी वाटर एंड शोर। एंड लिटोरल का मतलब क्या है, जोन बिटवीन द लिमिट्स ऑफ हाई एंड लो टाइड्स एंड इन मैरीन environment. Next question, major functional component of an ecosystem are, the answer here is energy flow and food chain. Okay, these are the major functional component of the इकोसिस्टम। क्यों है ऐसा, क्योंकि ये दोनों हमारे डिस्क्राइब करते हैं कि हर एक ट्रॉपिक लेवल में, हमें पता है फूड चेन इज कंपोज्ड ऑफ ट्रॉपिक लेवल, तो हर एक ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ बॉडी मोस्ट अफेक्टेड बाय द रेडिएशन इज, द आंसर इज बोन मैरो। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो बोन मैरो है वो आपकी बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत सेंसिटिव होती हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, रैपिडली डिवाइडिंग सेल प्रेजेंट है, रैपिडली डिवाइडिंग सेल प्रेजेंट है। ओके, और जिनका मेन फंक्शंस क्या है, हमारे आरबीसीज की प्रोडक्शन करना है ना। तो जब एक्सपोजर होता है हमारा इन बोन मैरो का रेडिएशन को, तो हमारी जो ब्लड सेल प्रोडक्शन है वो मोस्टली अफेक्टेड होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर इज फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ, द आंसर इज आइनोस्फेयर, आइनोस्फेयर। सबसे पहले आती है ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मिजोस्फेयर एंड देन आइनोस्फेयर, आइनोस्फेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंद्रावती टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन द आंसर इज छत्तीसगढ़। और ये जो टाइगर रिजर्व है इट इज नोन फॉर इट्स टाइगर पॉपुलेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट, लॉरिस इन इंडिया इज फाउंड इन असम एंड वेस्टर्न घाट, इज फाउंड इन असम एंड वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिफरेंट स्पीसीज कैन नॉट लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग इन सेम निच, दिस लॉ इज, कौन सा लॉ है इन सब में से, तो ये है गॉज लॉ, गॉज लॉ। आपका एलेंस लॉ क्या बोलता है, और ये एलेंस लॉ आपका बोलता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं आपके जो कि कहाँ रहते हैं, जो कोल्ड वेदर में रहते हैं, जो कि हमारे कोल्ड वेदर में रहते हैं, तो इनकी जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं, जैसे इनके कान हो गए, ईयर हो गए, तो वैसे कैसे होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, स्टिफलिंग इज रिलेटेड टू द आंसर इज लैग कल्चर, लैग कल्चर। नेक्स्ट है, कॉमन नेम ऑफ बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी इज फाइलेरिया वर्म। और ये जो है आपका, ये कौन सी डिजीज कोज करता है, इट कोज एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस। ओके, एंड इट इफेक्ट्स lymphatic system, lymphatic system, and especially it create defect in eggs or limbs. Next question, Australope is the name of, the answer here is fish. Next question क्या है, learn words are stored in, the answer here is Wernicke's area, Wernicke's area। Wernicke's area क्या है, ये जो एरियाज है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सब एरियाज हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, और उसमें से ये जो Wernicke's एरिया है ये किस चीज़ के साथ, ये हमारे लैंग्वेज के साथ, लैंग्वेज के साथ एसोसिएटेड है, और जितने भी हम वर्ड्स लर्न करते हैं तो वो इस एरिया में स्टोर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसेप्ट ऑफ साइंस स्टिमुलस वाज प्रपोज्ड बाय, द आंसर हियर इज ऑल ऑफ द अबव। ये जितने भी आपके साइंटिस्ट हैं दे कंडक्टेड देयर स्टडी स्पेशली ऑन एनिमल बिहेवियर, उन्होंने एनिमल बिहेवियर के बारे में स्टडीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिटिकल पीरियड इज फाउंड इन, द आंसर इज इम्प्रिंटिंग, इम्प्रिंटिंग। अब इम्प्रिंटिंग क्या है, जैसे कि वर्ड्स में इम्प्रिंटिंग है व्हेन यंग बर्न बॉन्ड विद देयर पेरेंट्स और केयर गिवर्स ड्यूरिंग अ लिमिटेड टाइम, मतलब अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ एक बॉन्ड बनाना, एक बॉन्ड बनाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट डिस्प्ले मोर देन वन वेरिएबल, द आंसर इज बार डायग्राम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, द आंसर हियर इज स्टैंडर्ड डेविएशन। सो बच्चों, अभी आपके
70 आउट ऑफ 70 क्वेश्चंस हैज़ बीन डिस्कस्ड। काइंडली आप तीनों पार्ट्स विजिट कीजिए इस वीडियो की ABC 3 पार्ट्स में आई है ये वीडियो, आप तीनों देखिए और कोई भी अगर क्वेरी है तो प्लीज़ पिन दैट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।